अच्छा, ये हमारे पास बेटा नवंबर 2016 का पेपर है, पेपर 42। इसको आज अटेम्प्ट करेंगे, जरा देखिएगा। आए, पहले केस स्टडी के ऊपर बात करते हैं। बोलता है, risk of reduced US monetary stimulus. The US Central Bank Federal Reserve announced in January 2014 that it would reduce its quantitative easing by cutting its monthly bond purchases by another 10 million. क्वांटिटेटिव ईजिंग को कम करने की बात कर रहा है, यानी कि वो मनी सप्लाई को कम करने की बात कर रहा है, जिससे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी कंजम्पशन कम होगी, आपकी सेविंग बढ़ जाएगी और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम होगी। ओवरऑल आपका एग्रीगेट डिमांड कम होगा। आगे बोलता है, it said that it was optimistic that the economy is about to start growing faster and there is underlying strength in the wider global economy. It had said interest rate near to zero. अच्छा भाई, उसने जी क्या करता है कि अपना वाइडर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए उसने बोला कि जो ऑप्टिमिस्टिक है, कि यार पॉजिटिव है कि हमारा फ्यूचर जो है वो आगे जाके अच्छा होगा। तो उसने क्या किया कि उसने अपने इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल जीरो के करीब करीब सेट कर दिया। आगे, the policy of Federal Reserves contributed to global shift in investment. Turkey, for example, which depends heavily on foreign investment, tried to bolster its currency by raising its interest rate to attract funds, but this did not work. बोलता है कि टर्की ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया ताकि लोग जो है इसके मुल्क में सेव करें और इनकी जो इकोनॉमी है, इनकी जो करेंसी है वो ग्रो करे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। The Federal Reserve, however, was thought to be unlikely to adjust its own policy in response to the problem in other countries unless it saw evidence that the problem was affecting the US domestic economy. Indeed, the problems in countries such as Turkey may have made it easier for the Federal Reserve to reduce its expenditure on bonds. बोलता है क्योंकि लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि यार बॉन्ड्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज को उसने देखा ना कि यार देखो उनको बॉन्ड वगैरह इशू करने से या बाय करने से कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ, इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करने से कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने भी इस चीज को जरा सा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। Investors seeking to limit their risk were bidding up the price of US bonds, counteracting the effect of the Federal Reserve's gradual reduction in the volume of its own purchases. बोलता है कि बॉन्ड्स की प्राइस के अंदर हमारे पास गोलियां लगना स्टार्ट हो गई, बिडिंग होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वगैरह इन चीजों में शेक होना स्टार्ट हो गया। The prospect of a future rise in US interest rate caused worrying declines in investment in emerging market. बोलता है कि हमारे पास डर था कि यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो जब ये डर हमारे पास खत्म हुआ, मतलब डर जब पैदा हो गया, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में कम होना स्टार्ट हो गई। China's deputy finance minister argued that the US has a responsibility beyond its own domestic economic concerns, saying, "We hope that as the issuing country of the largest reserve currency in the world, the US should be mindful of the wider effects of its macroeconomic policies." चाइना के डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात बोली कि यार यूएस को सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए, यूएस जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो यूएस को ओवरऑल सबका ख्याल रखना चाहिए। The Deputy Finance Minister added that the balance of payment problem in the developing world are partly due to lack of domestic economic reform there. बोलता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है। This was supported by a British official who said that emerging economies had been helped by cheap money from the advanced countries, but this disguised the need to follow through on fundamental reforms in some countries. Currencies of countries such as India, Indonesia, Turkey, and Brazil have been under particular pressure because of their current account deficit. सही है? A US official said that strong US growth is good for global economy and responded to criticism of the Federal Reserve's handling of quantitative easing. I think that what has been demonstrated is that we pursued a pro-growth policy that we believe is ultimately good for the global economy, because when the US economy is growing, it helps to provide momentum more broadly. बोले यूएस की इकोनॉमी जब ग्रो करती है यूएस की इकोनॉमी जब ग्रो करती है, यूएस की इकोनॉमी जब मोमेंटम पकड़ती है, तो उससे ओवरऑल पूरी दुनिया एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ जाती है और पॉजिटिवली हर बंदा यहाँ पे अफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो अब आएगा इससे क्वेश्चंस को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय मॉनेटरी पॉलिसी एंड गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रॉम द आर्टिकल। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी हर वो पॉलिसी जिसके अंदर आप मनी सप्लाई के चेंजेस के थ्रू अपने इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हैं, ये सारी आपका मॉनेटरी पॉलिसी होता है। एक सेकेंड। तो ये सारा आपका मॉनेटरी पॉलिसी होता है, ठीक है, जब आप इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर एग्रीगेट डिमांड या इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी होती है। अब उसने बोला कोई सी भी दो चीजें बता दें जो आपके पास केस के अंदर आ रही हैं एज एन एग्जांपल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे आओ, ये देखो सबसे पहला टर्म लिखा हुआ, सही है। दूसरी टर्म आपके पास यहाँ पे लिखी हुई थी कि हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड के बारे में बात हो रही थी, बिडिंग ऑफ बॉन्ड। हमारे पास बेटा इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात हो रही थी, ये देखो सही है। हमारे पास बिडिंग ऑफ बॉन्ड की बात हो रही थी, बॉन्ड लाइफ की बात हो रही थी, ये सारी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। पार्ट बी बोलता है व्हाट इज मेंट बाय द इकोनॉमी is about to start growing faster, explain how a stronger global economy could help to achieve this। बोलता है कि यार अगर हमारे पास इकोनॉमी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क में आउटपुट बढ़ रहा है, आपके मुल्क में जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और आपका जो है ओवरऑल एक इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, आप कैपिटल गुड्स को बढ़ा रहे हो, आप टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर रहे हो, आप जो है वो अपने पोटेंशियल को बढ़ाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ लिंक हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आगे उसने बात बोली है एक्सप्लेन हाउ अ स्ट्रॉन्गर ग्लोबल इकोनॉमी कुड हेल्प टू अचीव दिस। यहाँ पे जैसे यूएस की बात लिखी हुई है, आप यूएस की बात कर सकते हैं कि देखिए यूएस, क्योंकि हमारी एक डॉलर जो है, अब तो नहीं खैर, लेकिन पहले जो है यूएस की डॉलर जो था वो एक ग्लोबल करेंसी थी जिससे अंदर हम लोग ट्रेडिंग करते थे, अब तो वो टूट रही है चीज। तो आप ये बात करेंगे जब तक यूएस हमारे पास एक स्टेबल फॉर्म में चलेगा, अच्छी चीज में चल रहा होगा, तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी आएगी पूरी दुनिया के अंदर, तो उससे हमारे पास जो स्मॉलर इकोनॉमीज है उनको भी हेल्प हो। सी बोलता है consider how far the reason suggested in the extract could explain the pressure on the currencies of India, Indonesia, Turkey and Brazil। वो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहा कि हमारे पास इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की और ब्राजील के अंदर क्या चीजें हो रही हैं भाई। तो आपने यहाँ पे देखा क्या लिखा हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट। आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बताना है, सही है। फिर आपने करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट के बारे में बताना है कि ट्रेड इनपुट, ट्रेड इन सर्विस, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर, चार चीजें आ रही होती हैं। तो हमारे पास करंट अकाउंट जो है वो इस तरीके से डेफिसिट में जा सकता है, क्या पता कि आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब चल रहा हो, ठीक है, ये बातें आपने बतानी है उसके अंदर, सही है। अच्छा, इस तरीके से आपने उसको स्टार्ट किया, फिर आप फर्दर उसके अंदर बताएंगे कि यार यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे उसने बॉन्ड को परचेज करना कम कर दिया था। जब वो बॉन्ड को परचेज करना कम कर देगा तो इससे हमारे पास क्या होगा कि मुल्क के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि बहुत सी कंट्री ऐसी थी जिन्होंने इसको फॉलो किया इसको फॉलो कर रहे थे, ठीक है। चीप इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स को वो लोग फॉलो कर रहे थे, चीप फंडामेंटल रिफॉर्म्स को वो लोग फॉलो कर रहे थे। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि जब उसके अंदर हमारे पास बॉन्ड हम लोग कम कर देंगे, हमारे मुल्क में जो है वो मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट में हमारे पास एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, उससे इन्वेस्टमेंट वगैरह पे इफेक्ट आता है। डी है suggest what effect the Federal Reserve decision to reduce its bond buying by $10 billion a month could have on the US economy। यहाँ पे $10 billion की बात हो रही थी, ये रही, सही है, ये रहा हमारे पास बात हो रही थी, सही है। और ये सारा आंसर मैंने आपको यहाँ पे पहले ही डेवलप करके दे दिया है, सही है। ये वही आपका पूरा आंसर है कि आपके पास कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज होगी, आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। आपने यहाँ पे डायग्राम भी बनानी है जिसके अंदर आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम करोगे। देखो मेरी बात सुनो, A2 के अंदर आप लोग एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की डायग्राम पे फोकस करेंगे। आप लोग बिल्कुल वो ओ लेवल्स वाली एग्रीगेट उसकी डायग्राम नहीं बनाओगे, आप लोग A2 वाली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की डायग्राम बनाओगे। क्लियर है, समझ गया बेटा पूरा केस। कोई मसला?
सेक्शन बी पे आ जाए। अरे यार बेटा, सवाल एग्जामिनर ये बोलता है कि बच्चा ना आंसर को समझता नहीं है, उसको ब्रेक डाउन नहीं करता। मैं अब क्वेश्चन कोई भी पढ़ता हूं ना तो मैं बस की टर्मिनोलॉजीज पढ़ता हूँ। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ अपनी, कि मैं की टर्मिनोलॉजीज पढ़ता हूँ, सही है, और मैं ना पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता। अब यहाँ पे की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े जरा। इट हैज बीन सेड दैट द एम इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बेटा की टर्मिनोलॉजी है। should be to achieve the greatest happiness for the greatest number of people, ये पूरा irrelevant बकवास बात लिखी हुई है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से क्या लिखा। discuss whether economics has anything to say about the best way to maximize welfare from the uses of resources। पूरे का पूरा कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपका आ गया एफिशिएंसी मार्केट फेलियर, जो मैंने आप लोगों को 500 मर्तबा उसकी एमएस बताई हुई है। पूरे का पूरा क्वेश्चन वही है, एफिशिएंसी क्या होती है, आपने एफिशिएंसी से स्टार्ट लेना है। बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप लोगों को मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है यार। यहाँ पे आओ, ये रहा, ये पूरा आंसर है इसका। पूरा एमएसबी एमएससी मार्केट फेलियर नष्ट थ्योरी, ये पूरी वही बात है, बकवासी बात है। तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। अच्छा, अब वही, क्योंकि पुराना पेपर पैटर्न है, 12-13 मार्क का सवाल है, 20 मार्क का सवाल है, तो जरा सा साथ रहेगा, आपको भी सिर्फ समझना है कि आंसर लिखते कैसे। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पहले पढ़े। Discuss whether that theory is still valid if the producer decided to advertise the product and consider the effect of advertising on the demand for a product। सही है, देख लेते पार्ट ए पे। A number of consumers are deciding whether to buy a product. How far does economic theory explain the determination of the market demand for that product? तो बेटा ये आपके पास जब उसने डिमांड की बात कर दी ना, यहाँ पे बाय करने की बात कर रहे हैं, यानी कि डिमांड की बात कर रहा है, ये आंसर किसके साथ लिंक होगा, ये लिंक होगा थ्योरी ऑफ डिमांड के साथ। सही है, अब यहाँ पे जरा इसकी एमएस डेवलप कर लेते। क्वेश्चन नंबर 3 का एक, ठीक है, आपने थ्योरी ऑफ डिमांड से स्टार्ट करना है, यानी कि आप पहले रैशनल कंज्यूमर के बारे में बात करोगे, आप यूटिलिटी के बारे में बात करोगे, सही है, आप लॉ बताएंगे यूटिलिटी का, कि यार यूटिलिटी का लॉ क्या होता है, मार्जिनल लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये वाली बात आप बताएंगे उसको, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे हमारे पास क्या बोला था, कि यार हमारे पास ये इक्विलिब्रियम बनता कैसे है, और एक बात ये बताओ कि हमारे पास किस तरीके से थ्योरी ऑफ डिमांड के हिसाब से ये चीजें हमारे पास आ रही होती हैं, सही है। तो अब जब आपने यूटिलिटी वगैरह का बता दिया, आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे मार्केट डिमांड क्या होती है, सही है। आप बेसिक सा इक्विलिब्रियम बनाएंगे, बेसिक इक्विलिब्रियम आप ड्रॉ करेंगे, और उसी के अंदर आप इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को एक्सप्लेन कर दोगे। लास्ट में आप पीसीसी बनाओगे, कोई सा भी एक केस बना दो पीसीसी का। मैं अगर आपकी जगह होता मैं प्राइस डिक्रीज वाला केस बना देता। कोडेक्स की हमारे पास प्राइस कम हो रही है, तो वो टिल्ट करके मैं उसको शो करता और मेरे पास ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता। सही है, तो ये आपका पार्ट ए था पूरा। इसको क्या हो गया, एक सेकंड। सही है, तो ये आपका पूरा भाई यहाँ पे पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या आया हुआ है, टू कमोडिटी इक्विलिब्रियम के बारे में लिखना है बेटा। जाहिर सी बात है, जब आप ये वाला इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करोगे, जब आप ये वाला इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करोगे, आप टू कमोडिटी इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई तो करोगे ना कि वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 20 का। Discuss whether that theory is still valid if the producer decides to advertise the product and consider the effects of advertising on the demand for a product। यहाँ पर आपके पास पता है कौन सा वाला केस आएगा, क्योंकि ये पार्ट बी, और मैंने आप लोगों को बताया है कि पार्ट बी के अंदर हमेशा इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता था। अब जब आप एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे यार डिमांड का हमारे पास शिफ्ट हो सकता है, हमारे पास जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट करके दिखा दो, और आप जो है पूरा थ्योरी ऑफ डिमांड वगैरह जो है ना इनकम सब्स्टिट्यूशन का एक केस आप उसको बताएंगे।
प्लस उसके साथ आप ये बता सकते हो कि अगर एडवर्टाइजिंग अच्छी है तो आपके पास एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो सकती है और आपकी डिमांड जो है वो इनलास्टिक हो सकती है। ये चीजें आप उसको बता सकते हैं। शिफ्ट राइट पर आप करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी को वापस से आप जो है ना आप उसको लिंक कर रहे होंगे पूरे को, ठीक है। अच्छा, अब वो बोलता है कि यार क्या ये थ्योरी वैलिड है। कंक्लूजन में आप बोलेंगे कि यार थियोरी ऑफ यूटिलिटी तो हर जगह वैलिड होती है, कि देखो ना मैं कोई भी चीज बार बार कंज्यूम करता हूँ तो मेरी सेटिस्फेक्शन गिरती है, ये लॉजिकल सी बात है। लेकिन लेकिन जो रैशनल कंज्यूमर की थियोरी है ना कि यार नो इम्पल्स बाइंग, और ये बंदा जो एडवर्टाइजिंग से कभी इन्फ्लुएंस नहीं होता और चीज की इनकम हमेशा फिक्स रहती है और ये और वो, ये चीज वैलिड नहीं है, ये चीज वैलिड नहीं है। प्लस यहाँ पे आप जितनी भी क्रिटिसिज्म लिखी हुई थी ना नोट्स के अंदर, वो पूरी क्रिटिसिज्म आप यहाँ पे लिख रहे होंगे कंक्लूजन के अंदर। कोई मसले वाली बात? क्लियर है? हाँ ना, तो यूटिलिटी को भी आपने बताना है कि वैलिड होती है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम आपने बतानी है कि वैलिड तो होती है यूटिलिटी, अगर मैं बार बार मैं चाय का कप 50 कप पीता रहूंगा तो भाई सेटिस्फेक्शन तो गिरेगी ना एक टाइम पे आके। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जिम जब आप जाते हो, आप जिम बार बार जाते हो तो यूटिलिटी तो कम नहीं होती। आप स्पोर्ट्स खेलते हो, स्पोर्ट्स से यूटिलिटी कम तो नहीं होती। ये अलग इस तरह के हिसाब किताब हमारे चल रहे हैं, समझे? अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 बोलता है explain what is meant by the equilibrium of a perfectly comparative firm। परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होता है? एंड कंसिडर द व्यू दैट इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अचीव्ड इन अ परफेक्ट कंपटीशन बट नेवर इन मोनोपोली। और एक बात ये बताओ कि यार परफेक्ट कंपटीशन में ही हमेशा इक्विलिब्रियम अचीव होता है लेकिन मोनोपोली में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 25 मार्क का है, ठीक है। अब देखो इसने दो बातों को कंपेयर करने का बोला। इसने बोला यार परफेक्ट कंपटीशन को और मोनोपोली यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन को आप जो है आपस में कंपेयर करो। तो इन दोनों के आपने स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पे एक आसान, अगर मैं आपको आंसर अपना बता दूं तो ये है परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि 25 मार्क का है तो पूरी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे इसका इंट्रो देंगे, 1000 ऑफ प्रोड्यूसर, सेम गुड सेम क्वालिटी होमोजीनियस वगैरह, ये सारी बातें आपने यहाँ पे उसको बता दी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या स्टार्ट करना है? आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है शॉर्ट रन नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट रन, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट कंडीशन, शॉर्ट रन प्रॉफिट वाला, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट, लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट, ये चार आपने यहाँ पे बना दिए प्लस डायग्राम, ठीक है। ये चार आपने बता दिए। अच्छा जी, अच्छा एमसी इक्वल्स टू एमआर भी बताना है। हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, सॉरी पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बताओगे उसके बाद आप इस पे आओगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है? तो एक डायग्राम इसकी आ गई, चार डायग्राम्स यानी कि 5 डायग्राम्स आपकी अब तक बन चुकी हैं। A2 के अंदर पूरा गेम डायग्राम का, एक बात याद रखना। 5 डायग्राम्स आपके पास बन गई हैं, पांचों को आपने एक्सप्लेन किया। आप गए फिर किसके अंदर? आप फिर गए लॉन्ग रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर आपने नॉर्मल प्रॉफिट का बताया, सुपर नॉर्मल का बताया, बस। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाना वरना बहुत लंबा, वो थ्री कनेक्टेड नहीं बनाना वरना बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, टाइम नहीं होता है। तो सुपर नॉर्मल और नॉर्मल को आपने इन्हीं डायग्राम्स के साथ लिंक किया, इन्हीं डायग्राम के साथ लिंक किया और बस थ्योरी में बता दिया आपने उसको, ठीक है। अच्छा, फिर आप जाएंगे मोनोपोली के ऊपर। आप इम्परफेक्ट का इंट्रो दोगे, इम्परफेक्ट का इंट्रो दे दिया आपने, आपने मोनोपोली का इंट्रो दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से प्रॉफिट मैक्स प्लस सेल्स मैक्स, इन दो की डायग्राम बना देना।
इसकी तो लाजमी बनाना, इस वाली की लाजमी बनाना, इसकी मर्जी है, बनानी है बनाओ, नहीं बनानी ना बनाओ, बाकियों के लिए मर्जी है, क्योंकि वरना आंसर भी मैं आपको वही कह रहा हूँ बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप परफेक्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बताओ, एमसी इक्वल्स टू एमआर के बारे में, आप सेल्स मैक्सिमाइजेशन के बारे में बताओ, थियोरेटिकली बता दो पूरा भले, लेकिन प्रॉफिट मैक्स की डायग्राम बनाएंगे आप। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के बारे में बता दो, इस तरीके से बता दो। अब क्वेश्चन क्या था, क्या यार ये एक बात बताओ, लिखा हुआ है एंड कंसिडर द व्यू दैट इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अचीव्ड इन अ परफेक्ट कंपटीशन बट नेवर इन मोनोपोली मार्केट। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का जजमेंट स्टार्ट होगी। तो मुझे ये बताओ जरा चैट के अंदर कि क्या इक्विलिब्रियम अचीव होगा मोनोपोली के अंदर या नहीं होगा। सही है, सारे पॉइंट्स ठीक है। देखे ना, कंक्लूड इक्विलिब्रियम तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई हम स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम की तो बात नहीं कर रहे कि यार वो एमसी इक्वल्स टू एमआर होना चाहिए या एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस होना चाहिए या एटीसी मिनिमम होना चाहिए, हम लोग इसकी तो किसी की बात नहीं कर रहे। तो आप बोलेंगे भाई दोनों के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स अलग है। परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम पॉइंट जो लॉन्ग रन में जाके होता है वो हो जाता है एलोकेटिव एफिशिएंसी वाला, एमसी इक्वल्स टू प्राइस वाला। लेकिन हमारे पास मोनोपोली में जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो क्या होता है, एमसी इक्वल्स टू एमआर। तो इट डिपेंड्स कि भाई दोनों के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। हमारे पास अचीव हो सकता है इक्विलिब्रियम, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है ना। और किफायत ने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि यार डिपेंड ये भी करता है कि मोनोपोली इज रेगुलेटेड और नॉट, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड है या नहीं है। अगर तो गवर्नमेंट ओन्ड होगी तो मोनोपोली हमेशा एमसी इक्वल्स टू एआर पे ऑपरेट कर रही होगी। तो आप ये बातें उसको बताएंगे यार देखें इक्विलिब्रियम हो जाता है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड करता है कि किस जो हमारे पास मोनोपोली है या परफेक्ट कॉम्पिटिशन, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या चल रहे हैं। समझ में आई है बात। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। बी बोलता है डिस्कस वेदर गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम्स ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी आर लाइकली टू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। Explain the causes of unemployment and consider what type of unemployment is the most serious for the country in which you live. तो यहाँ पे आओ, आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बतानी है बेटा, जो मैंने आप लोगों को अभी मैंने जो क्रैश वाले हैं उनको तो अभी तक नहीं कराया खैर, लेकिन बाकियों को कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, तो आपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूरी पूरी बतानी है, जिसके अंदर आपके पास स्ट्रक्चरल आता है, आपके पास सीजनल आता है, आपके पास साइक्लिकल आता है, फ्रिक्शनल आता है। ये सारी बातें आपने बता दी। फिर आपने बता दिया जी फॉर माई कंट्री, मेरी कंट्री के लिए जो सबसे हार्मफुल होता है ना वो है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल कैसे, क्योंकि पूरी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही होती है ना, प्राइमरी टू सेकेंडरी जा रहे होते हैं या सेकेंडरी टर्शरी जा रहे होते हैं, तो वो एक आपके लिए बड़ा एक हार्मफुल सिनेरियो हो जाता है, आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपका बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब 5 का बी क्या बोलता है। Discuss whether the government macroeconomic aims of full employment, economic growth and price stability are likely to conflict with each other। तो यहाँ पे जरा आइएगा कि हमारे पास किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, इंट्रोडक्शन देना है कि यार देखो गवर्नमेंट के 4 मैक्रो इकोनॉमिक एम्स होते हैं जो बड़े मेजर होते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। तो ये गवर्नमेंट के 4 मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और मैक्रो इकोनॉमिक एम्स होते हैं। ठीक है, अब आप इसको लिंक करना स्टार्ट करो। अब आप यहाँ पे आप लिंक करना स्टार्ट करो। आप यहाँ पे डायग्राम्स कौन कौन सी बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, उसने आपको 4 बातें बोली, 3 बातें बोली थी, सॉरी, वो 3 बातें क्या थी, लिखा हुआ है जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी। सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी, ये 3 बातें यहाँ पे लिखी। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज वाली, नॉर्मल एएस वाली। सही है, अच्छा, फिर आप बताएंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वाली इंक्रीज वाली, जो आप A2 के अंदर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है,
और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आप LRAS को इंक्रीज करके दिखा देना। सही है, इस तरीके से आप बताना। अब आपने यहाँ पे जो मेन फोकस रखना है ना, वो आपने फोकस रखना है कि हमारे पास पॉलिसीज के ऊपर। अब यहाँ पे आओ, एग्जाम्पल्स दो और बोलो जी फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, आपके पास यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो रही है लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो रही, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है ना तो प्राइस आपकी बढ़ती है साथ में, तो प्राइस स्टेबिलिटी तो अचीव नहीं हो रही, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव हो रहा है। सही है, अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात करता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर भी यही सेम सिनेरियो फॉलो हो रहा है। LRAS की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाने की बात करता हूँ यानी सप्लाई साइड पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आपके पास प्राइस भी कम हो रही है, उसके अंदर आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ रही होती है और आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी आप जा रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल बेस्ट पॉलिसी है, क्योंकि हमारे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं आता। ये मैंने किसकी बात की है, सप्लाई साइड की। तो आपको इस तरीके से लिंक करना होगा। तो फिर आपको और फर्दर लेके जाना होगा कि यार अगर मेरे पास सप्लाई साइड और ये क्या पता बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेरे पास इश्यूज आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ देख के आ रहे हो तो आपके पास प्राइस अचीव नहीं हो रहा। ओवरऑल आप कंक्लूजन में बोलेंगे कि यार इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी को अचीव कर रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ जा रहा है या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की तरफ जा रहा है, गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जा रहा है या गवर्नमेंट सप्लाई साइड पॉलिसी की तरफ जा रहा है। आपको ये वाली सारी बातें उसके अंदर बतानी है। फिर आप बताएंगे गवर्नमेंट के सिचुएशन पे, इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पॉलिसी की तरफ जा रहे हो। लेकिन ओवर एंड ऑल आपकी कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी पॉलिसी अचीव हो जाए। अगर आप कोई ना कोई डिसीजन लेते हो, कोई ना कोई बंदा घर में ऐसा होगा जो कि आपसे नाराज होगा ही होगा। सही है, तो आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते। तो इसी तरह गवर्नमेंट भले कोई भी पॉलिसी लगा ले, गवर्नमेंट सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एक ही बारी में अचीव नहीं कर सकती। ये आपके पास कंक्लूजन होगा। कोई मसला? क्लियर है? चलो जी, क्वेश्चन 6 में है, some occupations that do not have pleasant working conditions such as rubbish collection receive low pay, while those with pleasant conditions such as senior managers receive high pay. How far does economic analysis explain this situation? सही है, तो आप यहाँ पे आओ। ये अब देखो ना, वेजेस की बात हो गई है, पे की बात आ गई है। पे की बात आ गई, इसका मतलब ये किसके साथ लिंक हो रहा है, ये लेबर मार्केट के साथ लिंक हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा जरा, इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। आपने यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई से स्टार्ट करना है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। सही है, फिर आप यहाँ पे लिंक करेंगे वेज डिफरेंशियल्स को। सही है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने डिमांड सप्लाई से लिंक किया, आपने यहाँ पे वेज डिफरेंशियल्स के बारे में बताया। एक सेकंड, सवाल तो दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। 6 में वो ये पूछ रहा है कि जमादार को कम पैसे मिलते हैं, मैनेजर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपने लिंक करना है एमआरपी को। जब आप डिमांड ऑफ लेबर की बात कर रहे थे, एमआरपी थ्योरी की आप बात कर रहे होते, तो आपने उसके साथ लिंक करना होता है। ठीक है, फिर आप फर्दर उसको लिंक करेंगे कि यार हमारे पास जो जमादार होता है ना, जमादार के पास स्किल्स कम होती हैं, उसके पास एजुकेशन कम होती है, उसके पास कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता उसका, जबकि सीनियर मैनेजर को ट्रेनिंग चाहिए होती है, पैसा लगता है, टाइम लगता है एजुकेशन के ऊपर, उसकी पढ़ाई के ऊपर, इसीलिए उसकी वेजेस ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये पूरा आपने परफेक्ट कंपटीशन, डिमांड सप्लाई ऑफ लेबर के साथ, इलास्टिसिटी के साथ इन सबको लिंक किया और फिर आपने दोनों का डिफरेंसेस बता दिया कि भाई क्यों मैनेजर ज्यादा पैसे कमाता है एज कम्पेयर टू जमादार। बी बोलता है डिस्कस व्हाट इन्फ्लुएंस ट्रेड्स यूनियन एंड गवर्नमेंट कैन हैव इन डिटरमिनिंग वेज रेट्स। कहता है ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट को क्या चीज डिटरमिन करती है कि वो वेज रेट एक पर्टिकुलर वेज रेट पे जाके बैठे। तो हमारे पास यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट किसका आ जाएगा, बायलैटरल मोनोपोली का।
सही है। आप यहाँ पे मोनोप्सनी का केस बताओगे, आप मोनोप्सनी वर्सेस ट्रेड यूनियन का केस बताओगे, आप यहाँ पे मिनिमम वेज वाली बात करेंगे जो मैंने आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई में, यानी कि यहाँ पे 3 डायग्राम्स आ जाएंगी आपके पास। यहाँ पे 1 डायग्राम आएगी, वहां पे 3 डायग्राम्स आएंगी। और कंक्लूजन आपने बताना है कि किसकी पावर ज्यादा है। बेटा बायलैटरल मोनोपोली का मतलब होता है कि जो आपके पास मोनोप्सनी कौन होती है, हाईएस्ट बायर ऑफ लेबर होता है ना, हाईएस्ट बायर ऑफ लेबर वर्सेस वो ट्रेड यूनियन जिसके पास मेजोरिटी मेंबर है, तो उन दोनों का क्लैश हो गया, पावर ज्यादा हो गई ना दोनों की, तो फड्डा दोनों का बराबर वाला होगा। तो ये 3 डायग्राम्स आपने यहाँ पे बनाई, आपने तीनों को एक्सप्लेन किया। कंक्लूजन में क्या जाएगा भाई, कंक्लूजन में वही वाली बात है कि पावर पे डिपेंड करता है, पावर पे डिपेंड करता है किसकी पावर ज्यादा है। मोनोपोली होगी अपने हिसाब से वेज लगवाएगी, ट्रेड यूनियन होगी अपने हिसाब से वेज लगाएगी, कोई सोल्यूशन नहीं पहुंचता तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से वेज लगाएगी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, उसको आपने लिंक करना है। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन और एफिशिएंसी वाले, जो कि पहले तकरीबन हर बारी रिपीट होते थे। लास्ट क्वेश्चन 7, conventional estimates of national income indicate that average income per head between 2009 and 2013 was US dollars 98780 in Norway and US में 36,900 in न्यूजीलैंड। नॉर्वे के अंदर न्यूजीलैंड से ज्यादा इनकम पर हेड हमारे पास आ रही है। सही है, हो सकता है जब उसकी बात ही कोई नहीं मान रहा। बेटा इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी एक होता है, आप रिकॉर्डेड वीडियो देखना, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा। Consider whether this means the standard of living in Norway is nearly 3 times as high in the New Zealand। बोलता है कि यार आपके पास न्यूजीलैंड में इतना है, नॉर्वे में इतना है, तो कंसिडर करें इसका मतलब क्या है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नॉर्वे में ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। तो अब यहाँ पे जरा देखो आपने यहाँ पे क्या लिखना है। देखो ये क्वेश्चन जो है किस पे फोकस कर रहा है, ये क्वेश्चन फोकस कर रहा है इनकम पर हेड के ऊपर, यानी कि जीडीपी पर कैपिटा। ये क्वेश्चन आपका जीडीपी पर कैपिटा के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर आपका एक फोकस दे रहा है। अब यहाँ पे जब आप यहाँ पे बात करना स्टार्ट करेंगे, तो आप बोलेंगे कि यार देखो हमारी इनकम ज्यादा है, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग डेवलप करते हैं। ये ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत लिंक कर रहा है आंसर। अब आप यहाँ पे बताएंगे कि यार क्या पता न्यूजीलैंड के अंदर हमारे पास नॉन मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा हो, जैसे कि हमारे पास फ्री ट्रांसपोर्ट हो गया, फ्री मेडिकल अलाउंसेस हो गए, फ्री एजुकेशन हो गई, तो ये भी तो भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं ना आपके। तो न्यूजीलैंड में क्या पता ये चीज ज्यादा हो, और ये चीज इनकम में तो नहीं आती, क्योंकि ये क्वालिटी फैक्टर्स है। सही है, इसके अलावा आप यहाँ पे बात करेंगे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करेंगे कि यार क्या पता न्यूजीलैंड अपने ही ऊपर डिपेंडेंट हो, वो खुद सारी प्रोडक्शन कर रहा हो, क्या पता वो खुद जो है वो सब्जियां वगैरह उगा रहा हो, तो उससे भाई उसकी जो है फार्मर्स की भी इनकम सिक्योर होती है। होम प्रोडक्शन की आप बात करेंगे, आप डिफरेंट ये भी बोल सकते हैं क्या पता दोनों का कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट हो, क्योंकि जाहिर है हर कंट्री में कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट होता है ना। प्राइस ज्यादा हो, देखो प्राइस का यहाँ पे लिंक नहीं आ रहा क्योंकि वो इनकम की बात कर रहा है, जीडीपी की बात कर रहा है ना, तो आप इसको प्राइस के साथ नहीं लिंक करो। आप बोल सकते हैं कंजम्पशन पैटर्न दोनों का क्या पता डिफरेंट हो, भाई न्यूजीलैंड वाले लग्जरी पे फोकस कर रहे हो या वो नेसेसिटी पे फोकस कर रहे हो, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे बतानी है इसकी। ये पूरा आपने क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से डेवलप करना है अपना, पूरे का पूरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उससे रिलेटेड है। Norway and New Zealand are classified as developed countries. Make a judgment on what are the important distinguishing differences between developed country and developing country। बेटा ये पूरे का पूरा आंसर आपके पास नोट्स में गिवन है और बहुत डिटेल्ड आंसर गिवन है। नोट्स के अंदर जो मैंने आंसर आपके पैराग्राफ लिखा हुआ है, नोट्स बनाए हुए उसी के अंदर है कि भाई डेवलपिंग के अंदर जो होता है वो एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं, शॉर्ट टर्म इनकम वगैरह कम होती है और प्राइमरी स्टेज पे काम कर रहे होते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो तो कम इनकम में गुजारा। हाँ हाँ, ये ऊपर पार्ट ए का आंसर है। अच्छा, और डेवलप्ड क्या होती है भाई, इनकम लेवल ज्यादा होती है, टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं, एजुकेशन होती है, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। फिर आपने यहाँ पे इसके अंदर उसको भी लिंक करना है, वो जो हमारे पास पिरामिड होता है,
जेंडर वाला पिरामिड जो होता है, जेंडर एज पिरामिड, वो भी आपने लिखना है इसके अंदर। आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया के बारे में बात करनी है कि अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन एरियाज कितने हैं, रूरल कितने हैं। तो ये सारी बातें आपने यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन करनी है और बहुत डिटेल्ड आंसर आप इसका फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता? ये वाला, और ये वाला, और ये वाला। मैं इन तीन में से कोई से भी दो अटेम्प्ट कर लेता हूँ। मैं इसके ऊपर कभी नहीं जाता क्योंकि इसके ना थ्योरी बहुत ज्यादा है, थ्योरेटिकल आंसर है, डायग्राम्स इतनी नहीं है। तो ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जाहिर है मुझे आंसर अपना एक क्वालिटी आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो, ये भी आसान था। तो मैं इन चार में से कोई से भी दो करना। देखो मेरी बात सुनो, एक चीज अपने जहन में बिठा लो, आप किसी को कोई चीज प्रूव नहीं करने जा रहे हो, आप एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करने जा रहे हो। आपके दिमाग में गलत सा परसेप्शन बना हुआ होता है जो ओ लेवल से बना हुआ आता है, यार क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट करते हैं, कोई अटेम्प्ट नहीं करता, क्वेश्चन 7 में अटेम्प्ट करूंगा ना थ्रेशोल्ड गिर जाएगा, मेरा ये आ जाएगा। ये सब बकवास बात है, ये चूरा नहीं है, पागल बनाते हैं, कुछ नहीं होता ये। आप किसी को प्रूफ नहीं करने जा रहे हो, कुछ अपना ग्रेड बनाने जा रहे हो, तो वो क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं। समझ में आई ये बात? फजूल में एक्स्ट्रा एफिशिएंट होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है पूरी कहानी, समझ गए? चलें जी, टास्क ऑफ करें, अल्लाह हाफिज।